Good morning and dear students. Today we are going to proceed the yesterday work which you have studied. In the last class you have studied what is profit and loss. You have also studied what is selling price, what is cost price, and we have done question number A also, right? Exercise 12.2 question A we have done. In that you have to find out profit or loss. Profit or loss कैसे निकालते हैं? You have done that. Basically whenever we are finding profit or loss, we just see either selling price is greater or cost price is greater. If selling price is greater, it means there is a profit. If cost price is greater, that means it is a loss. So by using this formula, you have find it out the profit and loss. So what is the formula of profit? Profit is equals to SP, selling price minus CP. CP means cost price. So profit equals to SP minus CP. And if we are finding loss, loss is equals to CP minus SP. मतलब cost price minus selling price. You have to learn all the formula which I have given you, right? So now we are going to do the exercise 12.2 question number B, that is word problem. ठीक है, अब हम करेंगे word problem. In word problem सबसे पहला question है, Ravi bought a digital camera for rupees 2,585 and sold it for 2,650. What was his profit? तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ? ठीक है, उसने क्या खरीदा? डिजिटल कैमरा. ठीक है, उसने एक कैमरा खरीदा एंड उसकी प्राइस कितनी थी? 2,585 एंड उसने सोल्ड किया, बेचा. कितने में बेचा? 2,650. It is clearly visible कि selling price is more than cost price, so there is profit. So अब कितने का profit हुआ? That we have to find out. Now let's see how to solve it. But before that, remember that you have to note down the questions from the book. Okay, you have to note down the questions. All right. All right. So now I'm writing here. You have to follow the same thing. Okay. So don't forget that you don't have to write the question. You have to write the question, right? सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे अपने नोटबुक में एक्सरसाइज 12.2 on a new page, and then here you will write question number B, that is word problem, like this, and then first question, that is question number 1, that is Ravi bought. I am showing you how to do in the notebook in first question, but rest of the question you have to solve by your own by writing from the book. ठीक है, बुक से क्वेश्चन देख के लिखना है. Ravi bought a digital camera. Okay, for rupees कितने का लाया है? For rupees 2,585 and sold it for, and कितने का बेचा? And sold it for rupees 2,650. ठीक है, so ये हो गई cost price and this is now selling price. Full stop. You have to find out what was his profit. कितना प्रॉफिट हुआ? ओके, एंड इसके नीचे हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सॉल्यूशन, एंड हियर यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन. समझ में आया? एंड वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ पे ऐसे आप अंडरलाइन कर दोगे. ऑलराइट, सो रवि बॉट अ डिजिटल कैमरा फॉर इतना, इतने का लाया, तो दैट मीन्स दिस इज व्हाट? सीपी. एंड सेल किया इतने का, दैट मीन्स इट इज अ एसपी. सोल्ड मतलब बेचना, सो सेलिंग प्राइस, एंड बॉट मतलब खरीदा, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस. गॉट इट? So now I am doing solution on the new page. You have to note it down below over here. यहाँ पे solution लिख के आपको ऐसे लिखना होगा, like cost price of this. Okay, so I am writing the solution now. सबसे पहले लिखेंगे हम लोग the cost price of digital camera. Cost price क्या है? The cost price of digital camera कितनी दी है? Yes, digital camera is equals to how much? Rupees 2,585. And then
the selling price of the camera या of digital camera, we can write the same thing, digital camera is equals to 2650. So here we have, now we will do what, compare, जैसे क्वेश्चन ए में किया था, comparing selling price is more than cost price, so there is profit. Now we will write the formula, SP is greater than CP, that equals to profit हो गया. So it means we have to find by the help of profit formula. So now profit is equals to SP minus CP. फॉर्मूला लिखेंगे और हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, so there is profit. ये क्या हो गया है, so there is profit, इसलिए हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा रहे हैं. सेलिंग प्राइस कितनी है, 2650 माइनस क्या करना है, 2585, दैट इक्वल्स टू, माइनस करेंगे कितना आएगा, यू कैन यूज रफ कॉलम हियर, ऐसे 2650 minus 2585, minus it, 10 minus 5, 5, here will be 4, now 14 minus 8, here 6, so we got rupees 65. Okay, so answer क्या होगा, answer, Ravi पूछा क्वेश्चन, what was his profit, Ravi earned a profit of, या Ravi had a profit of, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, Ravi earned a profit of rupees how much, 65. Got it? इसी तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है. एंड आई विल बी सेंडिंग यू पीडीएफ, नॉट टू वरी अबाउट अगर आपका वर्क छूट जाता है. यहाँ पे स्पेशली आपको समझना जरूरी है कि क्यों और कैसे करना है. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, रवि ने डिजिटल कैमरा खरीदा, ठीक है, कितने का, 2585 का, फिर उसने उसको बेचा कितने में, प्रॉफिट में, 2650. सो सेलिंग प्राइस ज्यादा, इट मींस देयर इज प्रॉफिट. सो प्रॉफिट के लिए हम सेलिंग प्राइस माइनस सीपी फॉर्मूला यूज करेंगे and we will subtract and find the answer. All right, so now let's do the next question. Next is 3. Here again I will be doing 1, 3 and 4, and question 2 is your homework by your own, you have to do. Next question is Ali, ध्यान से समझना, Ali sold his watch for, अली ने अपनी घड़ी को बेच दिया, वॉच फॉर रुपीज 1075, इतने में उसने अपनी घड़ी को बेच दिया. ही हैड, उसके पास कितना था, ही हैड बॉट, कितने का खरीदा था, ही हैड बॉट इट फॉर, उसने वो घड़ी कितने की खरीदी थी, 1200 की, ठीक है. सो व्हाट वाज हिज लॉस, यहाँ पे तो ऑलरेडी दे दिया है, बट आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस. नाउ अली सोल्ड हिज वॉच, कितने में सोल्ड की, कितना हो गया उसका एसपी, 1075. अब बॉट इट फॉर, कितने का खरीदा था, इतने का, तो ये हो गई कॉस्ट प्राइस. सो नाउ हियर सी, कॉस्ट प्राइस इज मोर देन एसपी, सो क्या हो गया, लॉस. एंड लॉस का फॉर्मूला क्या, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी. ये फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे. क्लियर? सो लेट्स डू द सॉल्यूशन. आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन. सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इन पीडीएफ में भी देयर इज नॉट रिटन द, तो यू हैव टू राइट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, आप लोग लिखोगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज रुपीज 1200. The selling price of watch is how much, 1075. So CP is greater than SP, there is equals to loss, so there is a loss. ये एक लाइन लिख देनी है and then write the formula, loss equals to CP minus SP, that equals to rupees. Rupees का symbol is must in money chapter, don't forget that. Okay,
अदरवाइज उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, राइट? सो नाउ सब्ट्रैक्ट एंड फाइंड आउट द आंसर. यू कैन डू हियर 1200 माइनस 1075. सब्ट्रैक्ट करना है. 10 में से 5 गया 5. Here is now 9 and this becomes 1. So 9 minus 7 2 and it becomes 1. So कितना आ गया 125. So you will write here Ali suffered. Suffer करते हैं ना, loss मतलब हम भुगतते हैं. तो Ali suffered a loss of rupees 125. इतना उसने लॉस बियर किया. बियर भी वर्ड लिख सकते हो, बियर, और सफर्ड इज ऑल्सो करेक्ट वर्ड. ऑल राइट. गॉट इट. सो नाउ वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. डिड यू अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम? कॉस्ट प्राइस कितनी दी वॉच की? 1200. सेलिंग प्राइस कितनी है वॉच की? 1075. तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब लॉस हुआ. तो लॉस का फॉर्मूला लर्न किया है सबने. सो लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी. सीपी इज कॉस्ट प्राइस. सो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. अ वेजिटेबल. मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रही हूं ताकि आप मिस ना करो. क्वेश्चन आपको लिखना है नोटबुक में. अ वेजिटेबल वेंडर बॉट. क्या खरीदा? वेजिटेबल वेंडर बॉट वेजिटेबल्स. उसने सब्जियां खरीदी, है ना, फॉर कितने की? रुपीज 540 की सब्जियां खरीदी. एंड सोल्ड. अब कितने में बेचा? खरीदा तो इतने में था, एंड कितने में बेचा? एंड सोल्ड फॉर हाउ मच? फॉर एंड सोल्ड देम फॉर रुपीज 580. कितने में? 580 में बेच दिया. सो व्हाट वाज हिज गेन और लॉस? तो अब इसको क्या हुआ? व्हाट वाज हिज गेन और लॉस? यहां क्या कह रहा है कि क्या इसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अब ध्यान से देखते हैं. ये क्या है? सीपी खरीदा, बॉट. ये क्या है? एसपी सोल्ड मतलब बेचा, है ना. तो ये हो गया सीपी क्योंकि ये बॉट है एंड सोल्ड है एसपी. तो अब हमें ये देखना है कि क्या ज्यादा बड़ा है. सीपी कितना है? 540. एसपी कितना है? 580. अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? एसपी. सो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. तो क्या होगा? जब सेलिंग प्राइस बड़ी होती है तो क्या होता है? प्रॉफिट. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, है ना. सो लेट्स डू इट. लेट्स डू द सॉल्यूशन. आई एम राइटिंग the cost price. Okay, wait, again I'm writing the cost price of vegetables is equals to कितना था? 540. the selling price कितना है? the selling price of vegetables is 580, right? So now compare करेंगे अब next step. So that means selling price is more than CP, that equals to profit. So there is a profit, है ना. So now we will put the formula of profit. Profit is equals to selling price minus CP. Put the value 580 minus 540. And rupee symbol is must. So profit equals to 580 minus this 40. So now write the answer. He gained. कितना फायदा हुआ? He gained. क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है gain और loss. So he gained rupees 40. है ना. कितना gain किया? rupees 40. All right. So I hope it is clear to you. कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 540. सेलिंग प्राइस कितनी थी? 580. तो दोनों को जब हमने कंपेयर किया क्या बड़ा निकला? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है तो इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट. सो जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट. ऑलराइट. सो टेल मी स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टूड?
कि क्या होता है क्या नहीं होता है. If there is any doubt, you can ask me or in the chat box. Okay, so you can ask me whenever you need that if it is not clear to you all, right? So let me explain you one more time. एक बार और मैं इस चीज को समझाती हूँ so that आपको कभी confusion ना हो, right? I'm going to explain it one more time. So be concentrated and understand. All right? Okay. So now I'm explaining it again. For example, okay, let me take pen first. For example, there is a boy. His name is Ram. His name is Ram, and he purchased a laptop of rupees 32,650. उसने लैपटॉप खरीदा. कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 32,050. Then he sold this laptop after using some day. कुछ दिन उसने यूज करने के बाद उसको बेच दिया अपने ही एक फ्रेंड को. That is called रवि. रवि को उसने वही लैपटॉप बेच दिया क्योंकि इसको जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थे उसके में वो नहीं थे, तो इसने कम रेट पे बेच दिया. तो 30,000 में उसके फ्रेंड ने, रवि ने ले लिया क्योंकि उसने बोला कि तुमने उसको यूज किया है तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट में तो नहीं लूंगा, मैं कुछ कम पैसे दूंगा. तो राम मान गया कि चलो ठीक है, मैंने कुछ दिन यूज किया, तुम ले लो. सो नाउ राम को क्या हुआ? फायदा या नुकसान? एक तरह से देखा जाए तो फायदा हुआ है. किस तरह से, किस सेंस में फायदा? इस सेंस में क्योंकि उसने उसको यूज करके बेचा है ना. बट एक्चुअल में तो उसने लॉस सफर किया. कैसे? सी, कॉस्ट प्राइस क्या है? ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, सो दैट मीन्स कि लॉस हुआ. लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, है ना. सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू 32,650 माइनस 30,000. सो कितने का? 2,650 का ही लॉस हुआ था. सो ही सेड ओके फाइन, चलो इतना लॉस तो चलता है ना. अब इसी तरह से एक और है, दैट इज कॉल्ड सीता. सीता ने क्या खरीदा? रेफ्रिजरेटर. क्या खरीदा? रेफ्रिजरेटर. ठीक है, उसने बहुत अच्छी सी कूलिंग वाली रेफ्रिजरेटर खरीदी 25,000 की, है ना, कॉस्ट प्राइस. एंड देन शी सोल्ड इट. ठीक है, फिर उसने उसको बेच दिया. कितने में? 26,500 में सेलिंग प्राइस, है ना. किसको बेचा? पता है? रीना को. रीना उसकी फ्रेंड थी, तो उसको ये रेफ्रिजरेटर पसंद आई, उसने ले लिया 26,500. इतने में वो सीता ने क्यों बेचा? क्योंकि रीना को तो पता ही नहीं था कि कितने की है, राइट. सो उसने बेच दिया. नाउ हु वाज इन प्रॉफिट? सीता. सो सीता ने क्या किया? सीता की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 25,000 और एसपी क्या है? ज्यादा है, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो उसको फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया. कितने का हुआ? वी कैन फाइंड आउट 26,500 माइनस 25,000. सो माइनस करेंगे, कितना हो गया? 1,500. इतने का प्रॉफिट हो गया, राइट. सो शी got the profit. So in this way you need to understand the questions and then you have to do. All right students, so I hope it is clear to you all. आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, and you have to just understand कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है एंड सेलिंग प्राइस क्या होती है. सेलिंग प्राइस मीन्स जिस रेट पे बेचा हमने. कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस मीन्स जिस रेट पे हमने खरीदा. ठीक है, बॉट, बॉट वर्ड, ब्रिंग, बॉट, ये सारी वर्ड्स सीपी के लिए यूज होते हैं. एंड सोल्ड, ठीक है, सेल, सेल्ड, तो सेल, ये सारी वर्ड्स सेलिंग प्राइस के लिए यूज होते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, एंड देन कंपेयर कि क्या बड़ा है. अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो दैट मीन्स प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो लॉस. ओके, bye bye, take care, have a nice day students, and next day we are going to do the next exercise, that is exercise 12.3. okay, bye bye, take care, have a nice day students.